स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ यूनिट 2 लेक्चर्स, है ना। यूनिट 1 जैसा कि हम फिनिश कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको जितनी भी बेसिक्स चीज़ें थी फिज़िकल लेयर के बारे में, OSI मॉडल के बारे में और आपका TCP IP मॉडल के बारे में, ठीक है। तो हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। इट इज़ रिलेटेड विद डेटा लिंक लेयर, है ना। तो डेटा लिंक लेयर की अगर मैं सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी देखूं तो सभी लोग आप जानते हैं, द फर्स्ट रोल ऑफ डेटा लिंक लेयर इज़ टू रेस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, ठीक है। तो हम ये समझते हैं एरर डिटेक्शन और करेक्शन। Some special instructional objectives are of data link layer. On completion of this lesson, the student will be able to explain the need for error detection and corrections, state how simply parity check can be used to detect error. इसके बाद parity check का हम देखेंगे. Explain how two-dimensional parity check extend error detection capabilities. और इसके बाद देखेंगे स्टेट हाउ चेकसम यूज फॉर डिटेक्ट एरर एंड एक्सप्लेन हाउ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक वर्क्स, है ना। साइक्लिक रिडंडेंसी कैसे कब वर्क करता है, इसके बाद हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। Environmental interference and physical defects in the communications medium can cause or random bit errors during data transmission. सभी लोग all of you know about it कि random bit errors cause during data transmission in computer network. Error coding is a method of detecting and correcting these errors to ensure information is transferred intact from its source to its destination. Error coding is used for fault-tolerant computing in computer memory, magnetic and optical data storage media, satellite and deep space communications, network communications, cellular telephones network, and almost any other form of digital data communications. Error coding uses mathematical formulas to encode data bits at the source into longer bit word for transmission. The code word can then be decoded and destination to retrieve the information. इसमें मैंने जो आपको बताया है कि सिंपल सा जब हम कोई डेटा भेजते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो हम उसको किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या करते हैं, सिक्योर मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, नोन एज, जिसको मैं क्या कहता हूँ, सिक्योर मैसेज, और जिसको मैं कहता हूँ ये कोडेड मैसेज, जिसको मैं कह रहा हूँ, है ना। और ये कोडेड मैसेज आपका रिसीवर साइड पे जब पहुँचता है, ठीक है, तो वहाँ उसको वो क्या करेगा, एनकोडेड कर उसको डिक्रिप्ट करेगा और आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रिसीवर साइड पे मिल जाएगी, ठीक है। द एक्स्ट्रा बिट्स इन द कोड वर्ड provide redundancy that, according to the coding schemes used, will allow the destination to use the decoding process to determine if the communications medium introduced error and in some cases correct them so that the data need not be retransmit. अगर वो communication पूरा करेक्ट डेटा आपका पहुंच गया तो आपको उसको रीट्रांसमिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। Different error coding schemes are chosen depending on the types of error expected, the communication medium expected error rate, and whether or not data transmission is possible. Faster processors and better communications technologies make more complex coding scheme with better error detecting and correcting capability. इसके बाद जो भी डेटा एरर फाइंडिंग की, डेटा फाइंड करने की, डेटा एरर डिटेक्ट करने की और एरर करेक्ट करने की जो भी हम पॉलिसीज यूज़ कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा डेटा लिंक लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर, trade-off between bandwidth and coding overhead, coding complexity and allowable coding delay between data transmission must be considered for each application. अब coding complexity, हम जो किस टाइप का कोड कर रहे हैं किसी पर, उसकी complexity डिपेंड करेगी, है ना, डिले डिपेंड करेगा, बैंडविड्थ जो हम चैनल की यूज़ कर रहे हैं वो एक वो हम कंसीडर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके कहीं ना कहीं हम अपने एरर को, जो हमारा एरर आने की पॉसिबिलिटी है, उसको हम या तो कम करते हैं या हम उसको फाइंड करके करेक्ट करते हैं, ठीक है। इवन इफ़ वी नो व्हाट टाइप ऑफ एरर कैन अकर, है ना। अब इसके बाद एक नया क्वेश्चन से अराइज होता है कि किस टाइप के एरर, व्हाट टाइप्स ऑफ एरर कैन अकर, वी कांट सिंपल रिकॉग्नाइज दैम,
We can do this simply by comparing this copy received with another copy of intended transmission. In this mechanism, the source data block is sensed twice. The receiver compares them with the help of a comparator, and if those two blocks differ, a request for a retransmission is made. To achieve forward error correction, 3 sets of a same data blocks are sent and majorly decision select the correct block. इसके बाद जो भी हम करेक्ट ब्लॉक भेज रहे हैं उसको मुझे रिसीवर पे क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा. दीज मेथड आर वेरी इनएफिशिएंट एंड इंक्रीज द ट्रैफिक 2 or 3 टाइम. इससे क्या होगा, जब हम बार बार उस डेटा को भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो चैनल बैंडविड्थ होती है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और जो ट्रैफिक है वो आपका बढ़ जाता है. फॉर्चुनेटली there are more efficiently error detection or correction code. These are 2 basic strategies for dealing with errors. One way is to include enough redundant information. Extra bits are introduced into data stream the transmitter on regular and logical base. अब एक्स्ट्रा बिट ऐड करने की जब बात आई तो हम एक्स्ट्रा बिट जो ऐड कर रहे हैं उनकी हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर अपन उसमें एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर रहे हैं. One way is to include enough redundant extra bits include along with each block of data sent to enable the receiver to deduce what the transmitted character must have been. The other way is to include only enough redundancy to allow the receiver to deduce the error has occurred but not which error has occurred, and receiver asks for a retransmission. Former strategy use error correcting code and later uses error detecting code. है ना, कहने का मतलब जो है जो भी हम उसमें एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने एरर जो आया उसको डिटेक्ट करने के लिए फिर उसको करेक्ट करने के लिए जो भी हमें पॉलिसीज लगेंगी वो हम यूज़ करते हैं. ठीक है. अब टू अंडरस्टैंड हाउ एरर कैन बी हैंडल, इट इज़ नेसेसरी टू लुक क्लोजली एट व्हाट एरर रियली इज. नॉर्मली अ फ्रेम कंसिस्ट ऑफ m डेटा बिट्स दैट इज मैसेज विथ n r redundant bit of check bits. Let the total number of bits n equal to m plus r. n bit until containing a data in check bit often referred to n bit code word. ये मैंने आपको बताया था जो n होता है ना, टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड बिट इक्वल टू डेटा बिट प्लस योर पैरिटी बिट्स, है ना. तो ये हम पूरा उसमें यूज़ करते हैं. अब इसके बाद देखिएगा टाइप्स ऑफ एरर की अगर मैं बात करूं, दीज इंटरफेरेंस कैन चेंज द टाइमिंग एंड शेप ऑफ द सिग्नल. सबसे पहला जो एरर है, if the signal is carrying binary encoded data, such changes can alter the meaning of the data. These errors can be divided into 2 types, single bit error और burst bit. Single bit error में अगर बात करूँ, the term single bit error means that only one bit of given data such a byte character or data unit change from 1 to 0 और 0 to 1. केवल सिंगल बिट चेंज होती है तो हम इसको 1 बिट एरर कहते हैं. सिंगल जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो 1 है वो आपका 0 में चेंज हो गया है. इसके बाद हम मल्टीपल बिट एरर की भी बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था. व्हेन मोर देन 1 बिट्स आर चेंज, है ना, जब एक से ज़्यादा बिट्स उसमें चेंज हो जाती हैं तो मल्टीपल बिट एरर कैटेगरी में आती हैं. सिंगल बिट एरर आर लीस्ट लाइकली टाइप ऑफ एरर्स इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन टू CY. इमेजिन अ सेंडर सेंड डेटा एट 10 Mbps. दिस मीन्स दैट ईच बिट लास्ट only for 0.1 microsecond. For a single bit error occur, noise must have duration of 0.1 microsecond, which is very rare, है ना. इसके बाद आप which is very rare. However, a single bit error can happen if we are having a parallel data transmission. जब हम parallel data transmission करते हैं तो उसमें मैं single bit error लेता हूँ. For example, if 16 wire is used for send all 16 bit of a wire at the same time, then one of the wire is noisy, one bit is corrupted in each word. ठीक है. इसके बाद आप देखिएगा वर्स्ट एरर की अगर मैं बात करूँ, द टर्म वर्स्ट एरर मीन्स 2 और मोर बिट्स इन द डेटा यूनिट हैव बीन चेंज फ्रॉम 0 to 1 और वाइस वर्सा. नोट दैट वर्स्ट एरर डज नॉट नेसेसरी मीन्स दैट एरर occurs in consecutive bits. The length of the worst error is measured from the first corrupted bit into the last corrupted bit. Some bits in between may not be corrected, है ना. एक से ज़्यादा बिट्स उसमें करेक्ट हो जाए, कंसिक्यूटिव बिट्स अगर करेक्टेड हो जाए तो वहाँ मैं वर्स्ट एरर की बात करता हूँ. जैसा कि आपको डायग्राम्स में भी दिख रहा है कि या मोर देन 1 बिट्स आर करेक्ट. मल्टीपल बिट का इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने मल्टीपल बिट को यहाँ कंसिक्यूटिव बिट्स भी इंक्लूडेड हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, वर्स्ट एरर कह रहे हैं. ठीक है. तो देयर आर सम एरर डिटेक्टिंग कोड, सिंपली पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, चेक सम, साइकिल रिडंडेंसी चेक, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे. बेसिक अप्रोच जो है हम जो डिटेक्ट करने के लिए हमने क्लास में भी आपको बताया है, मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर में भी ये बनाऊंगा.
ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ये आपका पूरा टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बता दिया, एरर डिटेक्शंस कोड के बारे में बता दिया, जो मैं एक एक करके अब डिस्कस करूँगा आपसे। थैंक यू।